का जो लेक्चर है पावस जी का, पिछली बार डॉक्टर मृदुला ने दिया, पावस जी का लेक्चर सुनेंगे और ये खुद वो बताएंगे कि वो किस चीज़ के ऊपर है और उसमें क्या कवर करना चाहते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अभिनंदन। Today's lecture is about managing and protecting your assets. When we grow older, our instincts are not that good. Our physical management of things, doing multitasking, disappears. Similarly, our brain and our memory start decreasing after 60-65 years, and slowly is decreasing. And in the 80s, as said earlier, कि भूल जाते हैं सामने खड़े हुए हैं कि नाम क्या है इनका, चाबी जेब में रखी होती है और फिर ढूंढते रहते हैं उसको। तो ये process of forgetting starts very early, but is very slow. And when you come to late 70s and 80s, it is very usual to have that process full blown. In some people, कुछ लोगों में ये जल्दी प्रोग्रेस होता है, कुछ में कम होता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी बनी रहती है। तो इसीलिए जब आप की एज हो गई है अराउंड 70-80, you should be thinking how to manage your things. You have already retired, and how to protect whatever you have. जो आपके पास है उसको कैसे सेफ रखा जाए। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है इसी विषय पर है कि हाउ टू मैनेज योर थिंग्स इन ओल्ड एज and whatever you have, how to protect that. Those two things are very important. So let's talk. I said managing and protecting assets in old age. That's the topic. So what is the assets? On personal level, like you and me and all of us, the assets can be grouped in 5 groups. First one is fixed income group. Fixed income group is like your GICs, your higher rate deposits, and sometimes there could be other things. So fixed rate investments are you deposit money like in GIC, and after the end of the term you get your money whatever you deposit plus interest on that one or ब्याज. दूसरा asset group is your stocks and shares like mutual funds, exchange traded funds like ETF, and bond funds. The first group, there is very little risk, and especially if you have GIC and a fixed investment with a big bank, RBC, TD, BMO, and so. They are federally regulated banks, and those are federally regulated banks. They are operated according to federal rule, and if one of the bank goes down, the federal government takes over. Your money is still safe there. In the second one, they are a bit risky.
they fluctuate with time. That's why they are called long-term investment. You can't just put for 1 year, 2 years, at least 5 or 10 years. The third group is alternate investments. They are the most risky investments, and I'm not going into detail about that, but they are just like cryptocurrency, hedge funds, penny stocks, venture capital stocks. They are very risky. You may lose everything, and sometimes you may make some money. It's basically gambling. The fourth group is sorry. फोर्थ ग्रुप जो है वो है आपका कैश और आपके पैसे और इक्विवेलेंट। और तो जो आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा है वो, या आपके पास ज्वेलरी है, या आपके पास कोई कॉइन कलेक्शन है, वो है कैश। और कैश के बराबर जो चीज़ें हैं आप कभी भी बेचकर उससे कैश ले सकते हैं। जो लास्ट ग्रुप है वो है आपके रियल एस्टेट एसेट्स। आपका घर है, आपका रेंटल कॉन्डो है, आपका रेंटल मकान है, आपकी कॉटेज है, या आपने किसी रियल एस्टेट के कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। ये भी रिस्की हैं और कभी भी जोखिम, कभी भी पैसा आपका, जैसे कि आजकल रियल एस्टेट की प्राइस डाउन है, कब ऊपर आएगी किसी को पता नहीं है। सो ये भी हमारे लॉन्ग टर्म 5 और 10 ईयर एट लीस्ट उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। सो जब हम इस एज में आते हैं 80 में, 85 में, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये देखना चाहिए कि हमको अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उनको कंसोलिडेट करना चाहिए। तो जो आपके बैंक में अकाउंट हैं, TFS अकाउंट है, RRSP अकाउंट है, या GICs हैं, या म्यूचुअल फंड है, आप ऐसी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो आपकी कन्वीनियंट है और जो वहाँ पर आपको सर्विस अच्छी मिलती है। तो आप वो सारे उस बैंक में अपना ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो एक बैंक आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसमें अगर हो गया तो आपको सभी चीज़ों का अलग अलग ध्यान नहीं रखना पड़ता है। दूसरा, जब बैंक जाएंगे और वो आप कहेंगे कि हमको ये चीज़ें आपके यहाँ ट्रांसफ़र करनी है, तो आपको वो एक एडवाइज़र असाइन करेंगे और वो एडवाइज़र आपकी सारी चीज़ें दूसरी बैंक से, जहाँ भी आपका पैसा है, म्यूचुअल फंड है, वहाँ से अपनी वाली बैंक में ट्रांसफ़र करा लेगा। तो आपके सभी चीज़ों के लिए, सभी अकाउंट्स के लिए देयर इज वन बैंक कॉन्टैक्ट एंड वन एडवाइजर कॉन्टैक्ट। तो इधर उधर आपको ध्यान रखने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे एसेट्स हैं इसे डिफ़िकल्ट टू मैनेज, लाइक रियल एस्टेट। आपका घर तो ठीक है, आप मैनेज करेंगे, फिर भी डिफ़िकल्ट है ओल्ड एज में। somebody has to clean the snow, clean the grass and all the things. But you can hire, if you have the money, somebody to do all those things. तो इसके अलावा दूसरी चीज़ हैं जैसे रियल एस्टेट, आपके रेंटल कॉन्डो हैं, रेंटल हाउस है, तो उनको मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप टेनेंट कभी पैसा नहीं देते हैं, आपका किराया नहीं देते हैं, कभी तोड़ फाड़ कर देते हैं, कभी आपका
अप्लायंस खराब हो गई, तो इस एज में आके ना आपके पास इतनी एनर्जी है और नहीं आपको याद रहती है कि उनको कैसे मैनेज किया, तो उसको आप सोचिए कि हम इनको डिस्पोज कर दें। लेकिन आज के मार्केट में आप डिस्पोज करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो तो बहुत कम होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जो आपके रियल एस्टेट का है या कोई और है जो आपको आज ज़रूरत नहीं है और उसकी आगे चल के भी ज़रूरत नहीं आएगी, वो आप अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को जिसको भी छोड़ जाएंगे, तो उसको अभी जो जिसको आप छोड़कर जाना चाहते हैं बच्चों के लिए, उसको आप अभी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो कॉन्डो है, घर है, जो भी है, आजकल उसकी कीमत कम होगी, तो उस कीमत में आप अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक तो आपको कैपिटल गेन टैक्स बहुत कम देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपके बच्चों की जो आजकल की कीमत है उसका कैपिटल कॉस्ट का बेस हो जाएगा, तो आगे चल के उनको भी कैपिटल गेन टैक्स कम देना होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड वो भी आप कहते हैं हम बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, सरप्लस है क्या है, तो उसके लिए आपको हो सकता है आप डोनेट करना चाहें, जिससे आप अपना नाम लेगेसी छोड़ जाएं, अपना नाम पीछे छोड़ जाएं, तो उसके लिए आप कैश मत दान कीजिए। जो आपके पास म्यूचुअल फंड हैं, शेयर्स हैं और वो हैं, उनको दान कीजिए। उसका फ़ायदा ये है कि आपने अगर 10,000 के कोई शेयर्स खरीदे थे या म्यूचुअल फंड खरीदे थे, उसमें आपको 5,000 का फ़ायदा हो गया, तो आपके वो 10,000 से 15,000 हो गए। तो जब आप दान करेंगे तो उस पूरे जो आपका 5,000 का गेन हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो एक तो वो आपका टैक्स बचा। दूसरा, जिसको आपने दान किया है वो 10,000 की नहीं, वो आपको 15,000 की टैक्स रिसीव देगा। वो आपका जो ईयरली टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसमें यूज़ कर सकते हैं और वो 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास पैसा है, आपकी किसी रिश्तेदार को, किसी को मदद करना चाहते हैं, खैर वो तो आपकी मर्जी है, उसमें टैक्स का उसका कोई सवाल नहीं है। तीसरा ये है, नेक्स्ट ये है कि जो आपने दान किया है उस दान को दूसरे कैटेगरी में भी आप बदल सकते हैं। जो आपका, उसको पैसे में भी बदल सकते हैं। आप टैक्स रिसीट लेके उसको किसी और काम का मतलब है टैक्स के लिए, और उससे पैसा नहीं ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं दूसरे टैक्स सिस्टम में। लास्ट वन, जो आपके पास सोना है, चांदी है, जो भी है, मेरी राय, खैर मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, उसको सेफ रखने के लिए अगर आपके घर में ठीक है, सेफ है तो ठीक है, नहीं तो बैंक के लॉकर में जाके रख दीजिए। दूसरा टॉपिक इसमें, पहले तो ये मैनेजिंग एसेट के बारे में बता दिया मैंने,
दूसरा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक अस, दोज हू आर सीनियर्स। पहले तो बाहर के लोगों को ये है कि ये सीनियर हैं, इनके पास काफ़ी पैसा है। जो भी होता है वो अपने देखता है कि जिस तरह से आपका वो पैसा ले सके वो कोशिश करता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो आपके पास है उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि पहले मैं कह चुका हूं कि कभी याद नहीं रहती है, कभी कुछ नहीं रहता है, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो है इन्वेस्टमेंट वाले आपके पास आते हैं, अलग अलग स्कीम से आते हैं। आप बस इतना पैसा लगा दीजिए, 3 साल में दूना हो जाएगा, 2 साल में दूना हो जाएगा। ये नहीं होता है। मार्केट में जो रेट है वो 6-7 से ज़्यादा नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। तो जो कोई आता है, जैसे आपने सुना होगा चिप प्रोग्राम, कैनेडियन होम इन्वेस्टमेंट प्लान, टीवी पे हमेशा आता रहता है कि आपको अप टू 55% जो आपके घर की कीमत है आपको मिल जाएगी। आप इस घर में बने रहिए और आपको कुछ नहीं देना है, मॉर्गेज वगैरह कुछ नहीं देना है। ये सब बकवास है। अगर आप 55 ईयर के हैं तो आपको 10 या 15% मिलेगा। अगर आपको 85 ईयर के हैं तो आपको 55% तक मिल सकता है, क्योंकि उनको मालूम है 55% दे दो, 5-10 साल में ये चले जाएंगे दुनिया छोड़कर। सो दे हैव बिग गेन। तो ये सब आपको फ्री नहीं दे रहे हैं, वो एक मॉर्गेज की रेट लगाई हुई है उन्होंने, उस मॉर्गेज के अनुसार वो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हम इनको कितना पैसा दें तब भी हमारा प्रॉफिट बना रहेगा उस घर को बेचकर। तो ये आपको मुफ्त में नहीं मिलता है, वो आपकी कॉस्ट है। तो ऐसी स्कीम आती हैं, वो कहते हैं अरे साहब आप तो पैसा लीजिए, आप खुशी से रहिए, ये कुछ नहीं है। दूसरा है कभी कभी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिल जाते हैं। पिछले महीने वो रिटायर हुए थे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की दुकान खोल के बैठ गए। न वो कहीं रजिस्टर्ड हैं, न इन्वेस्टमेंट के बारे में वो जानते हैं। लेकिन उनके पास अगर चले गए, हाँ साहब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, हाँ साहब हम, तो वो बात करने लगते हैं, कहते हैं हम तो सिर्फ उन कंपनी से डील करते हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, जो कभी नुकसान में नहीं जाती हैं। आपको सब हरी भरी चीज़ें दिखा देंगे वो। उनसे होशियार रहिए, कहीं पैसा मुफ्त में नहीं मिलता है। अगर वो कहता है कि अरे साहब आपका पैसा यहाँ, वो कभी घाटे में नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। एक्सेप्ट GIC, कहीं भी इन्वेस्ट करो आपका पैसा घाटे में भी जा सकता है, कम जा सकता है, ज़्यादा जा सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है। और कुछ ऐसे होते हैं सोशल कॉन्स, सोशल ठग्स। वो क्या है, आपके पास आके रोज चाय पीते हैं, समय बिताते हैं, कभी नाश्ता भी दे देते हैं, डॉक्टर सब्बरवाल जैसे लोग। तो बाद में बात करूंगा।
तो ऐसी बात है कि उनसे भी होशियार रहिए, वो धीमे 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 ले जाएंगे। भाई साहब, ये जो बिजनेस है इसमें बहुत फायदे हैं। बस आप थोड़ा पैसा लगा दीजिए, मैं देखता रहूँगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप तो कहेंगे नहीं भैया हमें कुछ नहीं करना है। धीमे 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 वो लगे रहेंगे, आपको परसुएट करेंगे। दीज आर कॉल्ड सोशल कॉन्स। आपने पैसा लगा दिया, 6 महीने बाद बिजनेस ठप हो गया, आपका पैसा चला गया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके बारे में हम बस यही कहेंगे, ज़्यादातर नहीं होते हैं, इस रेयर केसेस, लेकिन ये फैमिली में भी हो जाता है। माँ बाप बुढ़ापे में आ गए, उनके पास घर है, उनके पास थोड़ा पैसा भी है, बच्चे या भाई या जो रिश्तेदार जो भी, अरे आप अकेले यहाँ कहाँ पड़े रहते हैं, बुढ़ापा आ गया, आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपकी देखभाल करेंगे, और वहाँ बच्चे हैं उनके साथ आपका दिल लग जाएगा, और हम लोग भी हैं तो हम आपकी देखभाल करते रहेंगे। हम लोग सभी इमोशनल होते हैं। बच्चों ने कहा उनके साथ मूव करके, भाई ने कहा उसके साथ मूव कर, जो भी है आप मूव कर गए। वहाँ भी आप सारे दिन बैठे हुए हैं, बच्चे आके कभी खेल लेते हैं, कभी वो आपके भाई बहन या जिनके साथ आपने मूव किया या बच्चों के साथ वो आके बात कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद वो ही कहते हैं, अरे आप देखो ऐसा है, पिताजी माताजी जो भी है या भाई बहन, आप थोड़े एक्टिव हो जाइए। ऐसा करते हैं, आपकी डॉटर इन लॉ को एक बिजनेस खुलवा देते हैं, आप भी वहाँ रहिए, थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा आपका मन लग जाएगा, और आपकी डॉटर भी का काम उसमें भी अब आपका पैसा कुछ लगा दिया, अपना तो है ही नहीं उनके पास, उन्होंने लगा दिया। अब डॉटर इन लोगों को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं बिजनेस का, अगर इंटेंशन बुरे नहीं है तब भी वो बिजनेस चलेगा नहीं। वो बिजनेस ठप हो गया, आपका पैसा भी चला गया, आपका घर भी बिक गया, अब फिर बैठे हुए। हियर इज द लेसन। यहाँ आपको एक सबको सीख है कि अपना जो फ्यूचर है उसको सेफ रखिए। प्रोटेक्ट योर एसेट्स which you can use now and which you can use in the future until you are alive. Then there is a danger, कुछ लोगों की याददाश्त धीमे धीमे नहीं बहुत जल्दी चली जाती है। उनको मालूम नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है या हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसी दशा में उनको क्या होता है कि जो उनके पास एसेट्स हैं, जो उन्होंने अपनी पैसा रुपया जो भी रखा है अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए, उनको पता नहीं है कि उसको कैसे यूज, हमारे लिए कैसे यूज़ किया जाएगा, हमारी केयर के लिए यूज़ किया जाएगा। ये डिवीज़न करके हमारे जो भी बेनिफिशियरी हैं वो ले जाएंगे। तो हर एक इंसान को एक मेडिकल विल लिखनी चाहिए। उस मेडिकल विल में होना चाहिए कि आपकी कैसी केयर होना चाहिए, आपकी केयर के लिए जो आपके पास धन दौलत है उस केयर के लिए उस पैसे को यूज़ किया जाना चाहिए
जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उस पैसे का डिवीजन नहीं होना चाहिए, बेनिफिशियरी को नहीं जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे, एक बच्चा या दो बच्चे, आपकी गार्जियन बन के उसके लिए जब आप अपनी याददाश्त नहीं रखती हैं, याददाश्त नहीं है, आप अपनी केयर नहीं कर सकते हैं, तो एक उनमें से गार्जियन बन के दे कैन किसी को हायर करके या किसी के साथ रह के वो हर सप्ताह या हर महीने या हर 2 सप्ताह वो मॉनिटर करते रहें कि ये आपकी देखभाल ठीक हो रही है और आपका जो पैसा है वो आपके ऊपर खर्च हो रहा है। अगर वो नहीं कर सकते हैं कोई, या उनके ऊपर आपका विश्वास नहीं है, तो आप बैंक से कहिए, वो करेंगे, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाइए, वो किसी को अपॉइंट करेंगे। लेकिन उसमें ये है कि दे विल चार्ज यू फी, तो वो भी आपको देखना होगा। बैंक नॉर्मली दे आर रीजनेबल, they send somebody to come and monitor every week, every month, whatever it is, as required. So these are the few things I wanted to tell you today. In the end, I will say again, protect whatever you have now. Second, you don't have time for investment. For any investment, you need at least 5 to 10 years. And secondly, you should be active to manage that investment. If you cannot do, please don't do. Thank you. Question. Now, floor is open for question and answer. तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम क्यों हाथ उठा रहे? चलो चलो पूछ लो। We talked about medical bill. वो ले लो माइक। हेलो जी, मैं हाउस से पूछना चाहता हूँ कि वाइफ तो घर भी बात कर सकती है, क्या वो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकती है कि नहीं? क्योंकि मृदुला ने हाथ खड़ा किया इनसे क्वेश्चन पूछने के लिए, शायद घर में डरती हैं। नहीं, ऐसा है, मुझे एम्ब्रेस करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ रही हैं। घर में तो पूछते हैं क्वेश्चन हर समय, लेकिन यहाँ भी चल रहा है। चलो My question is, I'm glad that you brought the medical bill, but you didn't talk about the other bill. Yes, I missed that one. Everybody should have the will. Thank you. कि जब आप यहाँ नहीं हैं, इट्स गुड क्वेश्चन एक्चुअली, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके जो एसेट्स हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, किसको क्या दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। दिस इज गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सो एवरीबडी शुड हैव टू विल। वन, देव जी पूछना चाह रहे हैं, आइए। हाँ, मैं आपने बोला था ना, हाउस के ऊपर जो 55% लेते हैं, actually it's called a reverse mortgage. It's not bad. That what it helps people who don't have, let's say, person have a $2,000 income, he needs a $500 loan every month. So reverse mortgage, what it does it to you, they give it, let's say your house is worth 100,000 and you got a 45,000. You need a 1,000, you can draw the 1,000 every month. You don't have to ask anybody else. But you're giving an interest on a $1,000. So that will help you as long as you live, it will help you. So that's what my only
concern is nowadays reverse mortgage is becoming quite a bit very busy. And I went to very detail because I was also didn't want to have it. But when I went to detail, it's very helpful to the people who does not have extra income, who children does not help them, and they are their self-dependent. After that, let's see, after 5 years or 10 years, the person is gone, the children can pay the rest of the fund, and they can have their house free. Or either person can sell when 45,000 is finished, they have equity in the house, and they can sell the house and have that money, and they can rent it then after that. That's what's like. Pahuja Sahab, reverse mortgage, like chip type of the things, they are very well designed, complicated investment schemes. It is very difficult to understand वो सारी बातें आपको नहीं बताते हैं, आपको वही बताते हैं जो आप समझ सकते हैं। मैंने कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, मेरी समझ में सारी चीज़ें नहीं आती हैं। दूसरी इतनी चीज़ समझ में आती है मेरी कि जो बिजनेस में हैं, जो आपको मॉर्गेज दे रहे हैं, रिवर्स मॉर्गेज दे रहे हैं, उसमें उनका प्रॉफिट होना चाहिए। No, it's a bank. This is available from the bank. It's not a private. It's a legal. It's available from the. No, it's illegal. It is illegal. But ये तो सही है कि वो लीगल है, बिजनेस लीगल है, इलीगल नहीं है। लेकिन वो आपके फेवर में है या जो बिजनेस चला रहे हैं उनके फेवर में, सवाल इस बात का है। No, आपने बोला जो बिजनेस चला रहे हैं, they are not doing they are regular banks which they giving you reverse mortgage. It was before some people did it privately, but now with this bank, if you want to know more information, just go on a line, just go on internet. It will give you the full detail. देखिए, बिजनेस सबसे बड़ी बिजनेस है, सॉरी, बैंक्स आज सबसे बड़ी बिजनेस है। Exactly, but it helps the people like us. If we want to help, it will help us. Let's see, I don't have the money. Where do I go? I have a house. Where do I go? I still want to have a house. I still want to live in the house. So that's what it is for. People who still want to live in the house, and they can take a reverse mortgage. They are only paying what they're taking every month. Their line is there for 45,000, but only they use 500. They're going to pay on the 500. Just rather than continuing, एक बात बताऊं मैं आपको कि आप कितना ले सकते हैं उसमें से, वो डिपेंड्स अपॉन, उस पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप 55 ईयर्स से पहले तो नहीं देते हैं वो, अगर 55 ईयर्स की है तो आप लिमिटेड अमाउंट मिलेगा आपको, आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते हैं। अगर आप 80 के हैं तो हो सकता है जो मैक्सिमम आपको दे सकते हैं वो देंगे, और उसमें से जो आप खर्च करना चाहें वो आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना लेना चाहते हैं, हर महीने, हर साल, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो अमाउंट जो है वो फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप उसमें से कितना खर्च कर सकते हैं वो आपके ऊपर। Actually, the formula is the way you said it is 55, like percentage. You get the loan to value should be 55%. Doesn't matter what your age is. That's what, because they have the house equity, so the bank won't lose it on that one. I just want to explain to what I know about it. But you've done a beautiful job. Everything else you've done is good. नहीं, खैर, rather than continue, we can talk later on that. Any other question? मैंने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी हुई है
there is always a difference of opinion between two intellectuals. Yes, yes. They never agree. Everyone will stand to its own terms. मैं ये कहूँगा, No, I give up, sir. हो आज आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन ये चूंकि एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे देव पहूजा जी इसमें काम करते हैं और इनको इस चीज़ की वाकफियत है, कोई लॉ की बात करता है तो मैं उसको बड़े ध्यान से सुनता हूँ अपने व्यू पॉइंट से, जो शायद बाहर वालों के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन जो ये तैयारी करके आए, जो उन्होंने बताया, उसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हों, वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की ही है, देव जी ने भी वही बात की है कि भी बैंक एक सरकारी संस्था है, आप जाइए, रजिस्टर्ड हैं, उनके पास जाइए, वो आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे और प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे ताकि आपकी प्रॉपर्टी वेल प्रोटेक्टेड रहे। तो मैं कहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां इनके लिए कि जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। इस उम्र में बहुत से पॉइंट्स भूल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लेक्चर भी यहीं से शुरू किया। जो मैंने कहा था कि कई बार दिमाग आपका साथ नहीं देता, कि तो कई बार क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो आपका साथ नहीं देता, वो चीज़ दिमाग में ही घूमती रहती है, हालांकि वो पता होता है। ये उम्र का तकाजा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा फुट नोट जो है वो ऐड करूंगा, जिसके बारे में मैं फिर डिस्कस करूंगा। मैंने सीनियर्स के लिए 10 गोल्डन पॉइंट्स लिखे थे, और जब मैं अपना लेक्चर दिया करता था तो उसमें उनको रिपीट करता था। सबसे पहला जो है कि अपना पैसा अपने पास रखिए, किसी को मत दीजिएगा। कभी इमोशन में आके, इमोशनल होके भी बच्चे कह देते हैं, देखिए बड़ी बहुत बुरी हालत हो रही है, ये मॉर्गेज देनी है, ये देना है, ये देना है। हम इतने पिघल जाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये पड़ा हुआ है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी, शायद उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो आपको पैसा वापस ना कर सके। इसलिए दूसरी बात ये है कि जो हमारी जॉइंट फैमिलीज में होता है कि हम अपनी लाइफ के अलावा अपने एक्सपीरियंस अपने बच्चों पर थोपते हैं और उनको बातें मनवाना चाहते हैं कि नहीं, आप अपना इंडिविजुअल व्यू पॉइंट को बंद करिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको अडॉप्ट करिएगा। इसके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो मॉडर्न थ्योरी है। एक आपने देखी होगी, पीले रंग की काटने वाली मक्खी होती थी, पीले रंग की तितैया। शायद आपको इसके बारे में ना पता हो, उसकी माँ अंडे देके मर जाती है, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं तो उनको माँ की तरफ से कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता, लेकिन वो भी हर चीज को समझते हैं। आज यही मॉडर्न थ्योरी है एजुकेशन की कि आप बच्चे को अपने हिसाब से डेवलप होने दीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा आपने करनी है तो काउंसलिंग करिएगा, ना थप्पड़ मारिएगा, ना अपनी बात मनवाइएगा। आप अपने आप को बोना करेंगे, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो बच्चों के बात में इंटरफियर ना करिए और इंडिपेंडेंटली लाइफ और स्वस्थ रहिए, योगा करिएगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन करिएगा।